Hello dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss the classification of carbohydrates. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन. So listen, we all know that carbohydrate are the hydrates of carbon and it is classified into two type. It means जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज सुगर एंड सेकेंड वन इज नॉन सुगर. So listen, what are sugar? So sugar are the crystalline solid substance which is soluble in water. It means जो सुगर होते हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड which is soluble in water. They are soluble in water. और ये वाटर में क्या होते हैं? Soluble होते हैं. So listen, for example, we can take glucose, fructose, sucrose, maltose, raffinose, lactose. All these are the examples of sugar. Now listen. Now we will discuss the non-sugar. So non-sugar are those carbohydrate which is not soluble in water. It means non-sugar जो है ये water में soluble नहीं होते हैं. They are not soluble in water. So sugar are generally sweet in taste. It means sugar जो है generally sweet taste में होती है, while non-sugar has no taste. It has no taste. जबकि non-sugar में कोई भी taste generally नहीं होता. Now listen, the general formula of non-sugar is C6H10O5 का whole of N. It means non-sugar का general formula होता है C6H10O5 का whole of N. Sugar is classified into two types. So first one is monosaccharide and second one is oligosaccharide. It means now what are monosaccharides? So monosaccharides are the simplest form of carbohydrate. It means जो monosaccharide होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एंड इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. और इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है या मोनोसैक्राइड हाइड्रोलाइज होने के बाद डिसोसिएट या डीकम्पोज नहीं होते हैं अदर कार्बोहाइड्रेट्स में. इट मीन्स वी कैन से मोनोसैक्राइड it is the simplest form of carbohydrate and it does not undergo
hydrolysis. So listen, their general formula is इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn. This is the general formula of monosaccharide. So listen, on the basis of presence of carbonyl group, monosaccharide is also classified. Monosaccharide is also classified into two types. First one is aldoses and second one is ketoses. It means जो मोनोसैक्राइड है इनको कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज एल्डोसेज एंड सेकेंड वन इज कीटोसेज. सो लिसन, इफ carbonyl group is aldehyde, then carbohydrate or monosaccharide obtained will be called as aldoses. It means aldoses ऐसे मोनोसैक्राइड होते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप. सो aldoses, these monosaccharide contain aldehyde group. Aldehyde means CHO group. For example, aldo, example we can take aldo pentose, comma aldo hexose. Aldohexose is also called as glucose. Aldohexose को ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं. C6H12O6. This is the general molecular formula of glucose. And aldohexose is called as glucose also. Hexose, due to presence of 6 carbon and aldehyde group, this monosaccharide is called as aldohexose. ग्लूकोज में हमने क्या देखा था कि वहां एल्डिहाइड ग्रुप था, CHO ग्रुप था पहली कार्बन पर और वहां 6 कार्बन की एक चेन थी, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं. सो एल्डोस, द एग्जांपल ऑफ एल्डोसेज आर एल्डोपेंटोज एंड एल्डोहेक्सोज. नाउ व्हाट आर कीटोसेज? सो लिसन, when carbonyl group is ketone, then monosaccharide obtained is called as ketoses. It means जब कार्बोनिल ग्रुप हमारा कीटोन होता है, मीन्स CO ग्रुप होता है, तब जो हमारा मोनोसैक्राइड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटोसेज. सो लिसन, when or we can say these monosaccharide contain ketone group or CO group. So these monosaccharide contain ketone group or CO group. The examples of ketoses are ketopentose, and ketohexose. Ketohexose is also called as fructose.
and its general formula is also C6H12O6। तो ये जो जनरल फार्मूला है कीटोहेक्सोज मीन्स फ्रक्टोज का C6H12O6 वो मोनोसैकेराइड के जनरल फार्मूला को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये मोनोसैकेराइड का फार्मूला C6H12O6 तब बनेगा जब हम मोनोसैकेराइड के जनरल फार्मूले में n की वैल्यू कितनी रख दें, 6। So listen, ketohexose is also called as fructose. Why fructose is called as ketohexose? Due to presence of ketone or CO group and 6 carbon chain, monosaccharide will be called as ketohexose or fructose will be called as ketohexose. It means कीटोन ग्रुप या सीओ ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण और 6 कार्बन की चेन होने के कारण इस मोनोसैकेराइड को या फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहा जाता है। नाउ लिसन very carefully. Now we will discuss oligosaccharide. So what are oligosaccharide? So, oligosaccharide are those carbohydrate which give 2 to 10 molecules of monosaccharide on hydrolysis. इट मीन्स जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैकेराइड के, कब, जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। एंड लिसन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ monosaccharide unit after hydrolysis. Oligosaccharide are classified into 3 types. Generally, first one is disaccharide. Disaccharide. Second one is trisaccharide. And third one is tetrasaccharide. So what are disaccharide? So disaccharide are those oligosaccharides, are those carbohydrates which give 2 molecules of monosaccharide unit when their hydrolysis is done. It means we can say on hydrolysis disaccharide give 2 molecules of monosaccharide. It means disaccharide ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड के। ट्राइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड के। और टेट्रासैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 4 यूनिट मिलेंगी, किसकी, मोनोसैकेराइड यूनिट की। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। इट मीन्स डाई ट्राई टेट्रा क्या शो कर रहा है कि हमें जितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यही हमारा क्या शो करेगा, डाई। डाई मीन्स 2, जब हमें 2 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड यूनिट की तो डाइसैकेराइड। ट्राई मतलब 3, जब 3 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड यूनिट की जब हम ट्राइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। और टेट्रासैकेराइड मीन्स, टेट्रा मीन्स 4।
इट मीन्स जब 4 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड यूनिट की, जब टेट्रासैकेराइड की क्या कराई जाएगी, हाइड्रोलिसिस. नाउ इट मीन्स वी कैन राइट डाइसैकेराइड, it gave 2 molecules of monomer unit on hydrolysis disaccharide, it gave 2 molecules of monosaccharide unit on hydrolysis of trisaccharide. We can write trisaccharide gave 3 units of monosaccharide. Now we will discuss for tetrasaccharide. Tetrasaccharide will give four molecules of monosaccharide units. So example, in case of disaccharide, we can take some examples. For example, sucrose, maltose and lactose. The example of disaccharides are sucrose, maltose and lactose. The example of trisaccharide is raffinose, and the example of tetrasaccharide is starchiose. So in case of sucrose, the molecular formula of sucrose is C12H22O11. This is the molecular formula of sucrose. When it is hydrolyzed, then it will form one molecule of glucose and other molecule of fructose. It means you can see, जब सुक्रोज जो कि हमारा डाइसैक्राइड है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की गई तो हमें एक ग्लूकोज मिला और एक फ्रक्टोज की यूनिट मिली. और ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके एग्जांपल्स हैं? मोनोसैक्राइड के. इट मींस जब डाइसैक्राइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो 2 यूनिट मिलती हैं हमें मोनोसैक्राइड की. सिमिलरली इन केस ऑफ माल्टोज वी कैन टेक माल्टोज. So the molecular formula of maltose is same as sucrose. They are isomer with each other. And after hydrolysis,
it will form one molecule of glucose and other molecule of glucose also. It means when hydrolysis of maltose is carried out, then it will form 2 units of glucose monosaccharide. Now third example is lactose. The molecular formula of lactose is C12H22O11 plus H2O. So lactose sugar is present in milk, and when it is hydrolyzed, then it will form 1 unit of glucose and other unit of galactose. Other unit of galactose. So listen, glucose, fructose, galactose, all these are isomers with each other. Their molecular formula are same, but their structural formula are different. It means ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी का मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है. इसलिए ये एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, आइसोमर्स बोले जाते हैं. नाउ इन केस ऑफ ट्राइसैकेराइड, द एग्जांपल इज रैफिनोज. द फार्मूला ऑफ रैफिनोज इज C18H32O16 when it is hydrolyzed. Then it will form 3 molecules of monosaccharide, means 3 molecules of glucose. So listen, you can see, आप देख सकते हैं जब रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है, जो कि एक ट्राइसैकेराइड है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मोनोसैकेराइड मींस ग्लूकोज की कितनी यूनिट मिलती हैं, 3 यूनिट मिलती हैं, जिसके कारण रैफिनोज को क्या कहा जाता है, ट्राइसैकेराइड. नाउ next type of oligosaccharide is tetrasaccharide. So it will give 4 units of monosaccharide, for example starch iose, and its formula is, starch iose का formula होता है C24H42O21. This is the formula of starch iose. And when its hydrolysis is done, plus 3H2O, then it will give 4 units of glucose molecule. So 4 unit of glucose molecule. तो आप देख सकते हैं जब स्टार्च आयोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है, वाटर से रिएक्शन होती है, तो होता क्या है, हमें मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की 4 यूनिट्स मिलती हैं, जिसके कारण स्टार्च आयोज को क्या बोला जाता है, टेट्रासैकेराइड. नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन शुगर को. सो व्हाट आर नॉन शुगर्स? सो नॉन शुगर आर those carbohydrate which has no taste, and listen, they are generally insoluble in water.
इट मीन्स नॉन शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें जनरली कोई टेस्ट नहीं होता, और ये क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एंड दे आर क्लासिफाइड एज पॉलीसैकेराइड्स। इनको पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। So listen, polysaccharide, why they are called as polysaccharide? Because when hydrolysis of non-sugar is done, then they will give many, poly means many units of monosaccharide. It means जब नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये बहुत ज्यादा नंबर में या कई सारे यूनिट्स में मोनोसैकेराइड प्रोवाइड करते हैं। सो लिसन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन शुगर आर स्टार्च, सेलुलोज एंड इनुलिन, INULIN, इनुलिन, ETC. So starch, cellulose and inulin are the examples of polysaccharide or non-sugar. So listen, now पॉलीसैकेराइड इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पॉलीसैकेराइड को भी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इट मीन्स जो हमारा पॉलीसैकेराइड है इसको भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। सो लिसन, फर्स्ट वन इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड सेकेंड वन इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सो लिसन, व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड? होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। इट मीन्स ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड की सेम यूनिट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्टार्च C6H10O5 का होल ऑफ N, दिस इज स्टार्च। सो व्हेन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, देन it will form n units of glucose molecule, n units of glucose molecule. It means स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज की n यूनिट्स मिलती हैं, और ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। बट लिसन, व्हाट आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड? तो ग्लूकोज की सारी यूनिट सेम होंगी। होमो मीन्स क्योंकि क्या होता है? सेम। तो जब सेम यूनिट मिलती है हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो पॉलीसैकेराइड बोला जाता है होमोपॉलीसैकेराइड, और जब डिफरेंट यूनिट मिलती हैं पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो हमारा पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल, इनुलिन। तो जब इनुलिन की हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमें मेनली फ्रक्टोज यूनिट मिलती है। इट मीन्स फ्रक्टोज यूनिट हमें क्या मिलती है? मेनली मिलती हैं। बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट आल्सो। लेकिन इनुलिन की हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें फ्रक्टोज के साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज की भी यूनिट्स मिलती हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां मोनोसैकेराइड की हमें
अलग अलग या डिफरेंट यूनिट मिलती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेट्रोसैक्राइड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज विच वन इज स्वीटेस्ट शुगर। तो स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है मोनोसैक्राइड और ओलिगोसैक्राइड में? इट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज इज अ स्वीटेस्ट शुगर। सबसे ज्यादा स्वीट शुगर कौन सी मानी जाती है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर भी कहते हैं किसे? फ्रक्टोज को। वाइल ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, या ग्लूकोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, और इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ